إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام علیکم پیارے دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. شوہر کو یہ جملہ بولنے والی عورت بغیر حساب کے سیدھا جنت میں جائے گی. اللہ تعالیٰ ان 10 عورتوں کو سیدھا جنت میں بھیج دے گا. اگر آپ ایک عورت ہیں تو ضرور یہ ایک جملہ اپنے شوہر کو بولا کریں، پھر سیدھا جنت. دنیا کا بہترین خزانہ نیک بیوی ہے. جب شوہر اس کو دیکھے تو وہ شوہر کو خوش کر دے. جب اس کو کوئی حکم دے تو اس کی اطاعت کرے، اور جب وہ گھر سے باہر ہو تو اس کی حفاظت کرے. عورت رب کریم کا خوبصورت ترین تحفہ ہے. کائنات میں رنگ و نور عورت کے وجود سے ہے. اسلام میں عورت ماں، بہن، بیوی اور بیٹی ہر لحاظ سے معزز اور محترم ٹھہری ہے. عورت کا فطری تقدس، پاکیزگی اور اس کی جسمانی حرمت صرف اور صرف اسلام کی مرہون منت ہے. سورۃ النساء آیت نمبر 34 میں حکم ربانی ہے. پس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں. حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین بیوی وہ ہے جب تم اسے دیکھو تو تمہارا جی خوش ہو جائے. جب تم اسے کسی بات کا حکم دو تو وہ تمہاری اطاعت کرے، اور جب تم گھر میں نہ ہو تو وہ تمہارے پیچھے تمہارے مال کی اور اپنے نفس کی حفاظت کرے. مسلم. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ نیک عورت حقیقت میں وہی ہے جو اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری پر مداومت اور ہمیشگی برتے. اللہ اور اس کے رسول کا حق ادا کرنے کے بعد شوہر کے حق سے بڑھ کر کوئی حق نہیں رہ جاتا. نیک عورت سرمایہ ہے، قیمتی متاع ہے. دولت کو حفاظت سے رکھا جاتا ہے، دوسروں سے سنبھال کر چھپایا جاتا ہے. نیک عورت اگر شادی شدہ ہے تو جنت میں اپنے جنتی شوہر کے ساتھ رہے گی اور شوہر کو ملنے والی حوروں کی سردار ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس عورت کو ان سب سے حسین و جمیل بنائیں گے، اور وہ میاں بیوی آپس میں ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوں گے. عورت جنت میں اس شوہر کے ساتھ رہے گی جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا ہو، اور وہ شوہر جس نے عورت پر ظلم کیا ہوگا، اس کو تنگ کیا ہوگا، وہ اس عورت سے محروم رہے گا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کسی کے 2 شوہر ہوں تو وہ جنت میں کس کے ساتھ رہے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے اختیار دیا جائے گا، پس وہ اس شوہر کو اختیار کرے گی جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا ہو، اور وہی اس کا جنت میں شوہر ہوگا. اے ام سلمہ، اچھے اخلاق والے دنیا اور آخرت کی بھلائی لے گئے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چند عورتیں آئی، آ کر کہنے لگی، اے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی ایسا عمل بھی ہے کہ جس کے کرنے سے مرتے وقت روح آسانی سے نکلے، روح نکلتے وقت تکلیف نہ ہو، خاتمہ ایمان پہ ہو، مرتے وقت کلمہ پڑھتی مریدی اندھیری کوٹھڑی روشن ہو جائے، قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے؟ کوئی ایسا عمل بھی ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، عورت کے منہ سے نکلے یہ جملے اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں. اور سنو، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام کرنے والی عورت جب مرتی ہے تو قبر سے سیدھا جنت میں چلی جاتی ہے، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلی جاتی ہے. جو عورت اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام سر انجام دیتی. عورتوں نے پوچھا، اے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بتائیں تو صحیح وہ جملے کون سے ہیں؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلا جملہ بیوی کا شوہر کے سامنے حلال رزق طلب کرنے والا جو جملہ ہے اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے. حلال رزق طلب کرنے والی بیوی، حلال رزق مانگنے والا یہ جو جملہ ہے، جو بیوی اپنے شوہر کو کہتی ہے، میرے سرتاج میرے گھر میں لے کے آنا تو حلال کا لقمہ لے کے آنا، میرے گھر میں لے کے آنا تو حلال کا رزق لے کے آنا،
सुनो, हराम रिस्क में अपनी औलाद को नहीं खिलाऊंगी, क्योंकि ये जो हराम रिस्क है, हराम नवाला है, मेरी औलाद की आंखों से हया छीन लेगा, शर्म छीन लेगा, गैरत छीन लेगा। मैं अपनी औलाद को बेहया नहीं बनाना चाहती, मैं अपनी औलाद को बेगैरत नहीं बनाना चाहती। मेरे घर में अगर रिस्क लेके आना तो हलाल रिस्क लेके आना। एक सहाबिया का रुला देने वाला वाकया मुलाहिजा फरमाए। एक गरीब सहाबी था, वो रोजाना मेहनत मजदूरी करने के लिए सुबह सवेरे घर से बाहर निकल जाता, रोजी की तलाश में निकल जाता, शाम को रोजी करके वापस घर में आ जाता, खुद भी खाता, अपनी गरीब बीवी को भी खिलाता। एक दिन ये हस्बे मामूल घर से बाहर निकला, सारा दिन खाक छानता रहा, पूरा दिन रोजी तलाश करता रहा, मजदूरी तलाश करता रहा, उसे कोई मजदूरी ना मिली, रोजी ना मिली, खाली हाथ शाम को वापस घर आ गया। घर में खाने के लिए कुछ था ही नहीं, खाली पेट शौहर और बीवी सो गए, भूखे सो गए, सहाबी और सहाबिया भूखे सो गए। दूसरे दिन फिर हस्बे मामूल घर से बाहर निकला, रोजी की तलाश में सारा दिन खाक छानता रहा, रोजी ना मिली, काम ना मिला, मजदूरी ना मिली, शाम को खाली हाथ वापस आ गया। दूसरी रात भी सहाबिया औरत हस्बे मामूल अपने शौहर के दरवाजे तक ले गई, रुखसत करने के लिए ढेरों दुआओं के साथ, नेक तमन्नाओं के साथ, दुआओं के साथ शौहर को रुखसत किया। शौहर जैसे ही 4 कदम आगे बढ़ा तो बीवी ने कहा, रुकिए, मेरी बात सुनकर जाइए। शौहर रुक गया, बोला, क्या कहना है? उस सहाबिया गरीब बीवी ने कहा कि मेरे सरताज, इस सोच की बुनियाद पर कि मेरी बीवी 2 दिन से भूखी है, 2 रातों से भूखी है, कहीं ऐसा ना हो कि आज आपको मजदूरी ना मिले और आप हराम का रिस्क लेकर मेरे घर में आ जाएं। याद रखिएगा कि मैं मर जाऊंगी लेकिन हराम रिस्क कबूल नहीं करूंगी। हराम कमाई का लुकमा ना तो मैं खाऊंगी, ना तो अपनी औलाद को खिलाने दूंगी। वो थी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियां, जिनकी गोद में इस्लाम पलता था। कहती है, मैं भूखी मर जाऊंगी, तीसरी रात भी भूख से गुजार लूंगी, कोई बात नहीं, अगर काम ना मिले तो वापस आ जाना, चोरी का माल मेरे घर में ना लेके आना, सूद का माल मेरे घर में ना लेके आना, हराम माल मेरे घर में ना लेके आना। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, फरमाया, बीवी जब शौहर से हिलाल रिस्क तलब करने वाला जुमला बोल रही होती है, उस वक्त अल्लाह ताला के बहुत ज्यादा करीब होते यही जुमला मरते वक्त उस औरत की रूह आसानी से निकलवाएगा। रूह निकलते वक्त उसे तकलीफ नहीं होगी, कब्र के अंधेरी कोठड़ी रोशन कर देगा। ये जुमला कब्र जन्नत के बागों में से बाग बना देगा। ये जुमला फरमाते हैं, दूसरा जुमला, बीवी अपने शौहर के आगे कोई ऐसा जुमला बोल दे जो जुमला शौहर की परेशानियों को खुशियों में बदल दे। शौहर परेशान था, गमगीन था, अफसुर्दा था, बीवी ने कोई ऐसा अल्फाज कहा, कोई ऐसा जुमला बोला जिस जुमले ने शौहर की परेशानियों को खुशियों में बदल दिया। ये जुमला भी अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा पसंद है। शौहर की रजा अल्लाह की रजा है, शौहर की खुशी अल्लाह की खुशी है। अगर रब को खुश रखना चाहती हो तो अपने शौहर को खुश रखना। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, तीसरा जुमला इतना बड़ा कीमती, सर जिस सर के अंदर देखने के लिए आंखें, सुनने के लिए कान, बोलने के लिए जबान, सोचने और समझने के लिए दिमाग, जहन, इतना बड़ा कीमती मटेरियल जिस सर के अंदर है, बताओ तो सही वो सर कितना कीमती होगा। जब औरत इतना बड़ा कीमती सर अल्लाह के हजूर झुका कर कहती है, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, अल्लाह को इतना पसंद है यही सुबहान रब्बियल आला, मरते वक्त उसको कलमा नसीब करेगा, मरते वक्त उसका खात्मा ईमान पे करेगा, कब्र की अंधेरी कोठरी रोशन कर देगा, कब्र जन्नत के बागों में से बाग बना देगा। नमाज का दामन मजबूती से पकड़ते रहना, नमाज का दामन कभी ना छोड़ना। अल्लाह जब नाराज होता है रोटी बंद नहीं करता, अल्लाह जब नाराज होता है रिस्क बंद नहीं करता, अल्लाह जब नाराज होता है सूरज को हुक्म नहीं देता कि फलां शख्स मेरा नाफरमान है, तेरी किरणें इसके आंगन में नहीं जानी चाहिए। अल्लाह जब नाराज होता है तो सजदों की तौफीक छीन लेता है। अल्लाह जब नाराज होता है तो ये मन उजड़ जाता है। जिस बंदे का मन भी उजड़ जाए उसके पल्ले रहता ही क्या है। फरमाया चौथा जुमला कि जो औरत अपने शौहर की इजाजत के बगैर किसी गैर मर्द से नहीं मिलती, गैर मर्द से बात नहीं करती, अपने शौहर को साथ लेकर चलने वाली औरत सीधा जन्नत में दाखिल होगी। फरमाया
नंबर 5, जो औरत अपने शोहर का सर फख्र से बुलंद करने वाली, ऐसी औरत जो अपने शोहर को कभी शिकायत का मौका नहीं देती, फर्मा बरदार होती है। किसी ने एक आरिफ से पूछा कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम क्यों तबाह हुई? आरिफ ने कहा कि उस कौम की माँ नाफरमान थी। पूछा गया कि माँ कौन? बताया नूह की बीवी। नेक औरत औलाद के लिए दुआगो रहती है, उनके हालों मुस्तकबिल की फिक्र करती है। और आरिफ से पूछा गया कि हजरत ईसा को के बारे में बात करने की तौफीक कैसे मिली? जवाब दिया कि उनकी माँ मरियम अलैहिस्सलाम की दुआ की बदौलत। आज इस्लाम में औरत का मकाम। जन्नती औरत को जन्नत की बिशारत देते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या औसाफ बयान किए हैं। एक हदीस से वाज़ेह होता है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, वो बयान करते हैं कि हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सीरत हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। एक मर्तबा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपके पास आ रही हैं। उनके साथ एक बर्तन है जिसमें सालन या खाना पानी है। जब वो आ जाएं तो उन्हें उनके परवरदिगार की तरफ से और मेरी जानिब से सलाम कहिए और उन्हें जन्नत में हीरे और जवाहिरात के बने मकान की बशारत दीजिए जिसमें शौर और शआब और रंजो मलाल ना होगा। हजरत हुसैन बिन मोहसिन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मुझसे मेरी फूफी ने बयान किया कि एक दिन मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई। आपने मुझसे पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम शोहर वाली हो? तुम्हारा खावंद है? मैंने कहा हाँ। आपने फरमाया, तुम उसके लिए कैसी हो? मैंने जवाब दिया, उसकी इताअत और खिदमत में कोई कोताही नहीं करती सिवाय उसके कि इसका काम से आजिज हूँ। आपने फरमाया, खूब सोच लो क्योंकि वही तुम्हारे लिए जन्नत और जहन्नुम है। शोहर की इताअत और खिदमत फर्ज है। आखिरत की जिंदगी में कामयाबी का दारोमदार शोहर की खिदमत में मुजम्मर है। जन्नती औरत हमेशा शोहर के ताबेदार होती है, उसके आराम और सुकून का ख्याल रखती है। नेक औरत को चाहिए कि अच्छाई और नेकी के काम में हिस्सा ले और अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीजा अदा करे, अपने आका और मालिक का हक अदा करे कि कुरान पाक में हुक्म है कि तुम खैर उम्मत हो जो सारे इंसानों के लिए वजूद में लाई गई है। तुम भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो और अल्लाह पर कामिल ईमान रखते हो। सूरत आल इमरान आयत नंबर 110। नाजरीन, ये जुमले ऐसे हैं, ये काम ऐसे हैं जिससे मरते वक्त औरत की रूह आसानी से निकलेगी, खात्मा ईमान पे होगा और कब्र से सीधा जन्नत में चले जाओगे। अल्लाह पाक हमें दीन की मुकम्मल समझ नसीब फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन।